हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं फूड चेन। दैट इज अ फूड चेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम अ प्लांट एट अ प्रोड्यूसर थ्रू देयर सीरीज ऑफ organism with the repeated eating and begin it is called to the food chain. There is a show in this diagram here a grass. Their grasses is the eating by the grasshopper. The grasshopper has the frog is eating to the grasshopper and snake eating for the frogs and the eagle eating to the snake. There is the making of the food chain. There is a food chain is the series of organism that repeating eating. There is simple language. There are a series of organism with the repeating eating. It is called to the food chain. Each step is a food chain is called tropical level. In the above example, grass is a first and the eagle represent a fifth tropical level. There is a different size and different category. And some more example of food chain is given here. So here show the first diagram is a grassland. There P is a producer. There is the grass is a P and S is the herbivorous and C is a carnivorous. There is a most important diagram showing the first. There is a grass as a rat and the snake and the eagle. But other side there is a pond that are eating for their other types of animal. And the last is the forest. The forest eating to the as a deer and eating for the lions also on the deer. There is a most important is a food chain here linked for the each other. So here the three important features that you can be note in these chains are the first is the weaker organism are attacked by their stronger organism. There is a natural phenomenon. There is a weak organism are attacked by the stronger organism and their number of organism is reduced at the each higher level but the size of organism is increasing. And their third fact here there the number of step is a food chain is limited to 4 to 5. There is a maximum here. The 4 to 5 is a food step in the all food chains here. The first is the food chain consists of flowing tropical level. The first is a producer. Producer means is autotroph. There is a producer food for all other organism of the ecosystem. The autotrophs is represent the first tropical level. They are the larger greens plant. They convert to inorganic substance by the process of the photosynthesis into the food. There is the organic molecules and in the presence of sunlight the total rate at which is their radiant energy is stored by their process of photosynthesis in their green plants is called a gross primary productivity means GPP. There is a gross primary productivity is a GPP and this is known as the total photosynthesis. That is also called to the total photosynthesis. A part of this gross primary productivity is utilized by their plant for their oven metabolism. There is a oven metabolism and maintenance and reproductions. The energy required for their all this function is produced by the process of respirations. The remaining of stored by them as the net primary productivity means NPP. There is a net primary is a productivity and the available for their heterotrophy is a consumer. There is a next as a trophical level. Here to show the equation the GPP is equal to NPP plus R. It means to GPP minus R is equal to NPP. The productivity in the biological system is a consist of a process but it is a different in a different ecosystem. There is second is here primary consumer herbivorous and these are animals which are feed directly on the plant and they are first level of consumer and therefore they are known as a primary consumer and make the second tropical level in the food chain. Example is a grasshopper in the above example. Another example are insect, birds, rodent and ruminants. And the herbivorous is capable to convert it energy stored in the plant tissue into the animal tissue and therefore they are known as the key industries. They can digest high cellulose diet. And the next is the third is a secondary consumer carnivorous. There is the most important here
The carnivorous are animals that feed on the other animal. It is a tissue, and therefore they are secondary, tertiary, and quaternary is a level consumer. Frog is a secondary level consumer as a feed on the herbivorous is a grasshopper, and snake is a tertiary level is consume the same. It is a consume other carnivorous that a frog. The frog, snake, dog, and cat and tiger are all the carnivorous. Generally, the size of carnivorous increasing at the each tropical level. There is a most important here, and the last is a decomposer. Decomposer is the most important here, and they make to the final tropical level is the food chain. It is a decomposer. Are there organisms that feed on the dead organic matter? It's called to tetrus, composer, and bacteria, fungi, and the mites of the millipedes, and the earthworm is the neptotoads, and the close crabs, and the mollusks. There is a most important here. There is the a feeding of the dead organic matter. There is a decomposer. The decomposer are there a feeding of dead organic matter. So here is the most important. The special feeding groups is a consumer. The first is a scavenger. Scavenger is here. There are the animals that feed on the dead plant and animals. Example: termites and the beetles feed on the declined rodents, and many marine invertebrate is the vulture, gulls, and the hyena. There are other example of scavengerers. There is the most important word for the scavenger, and the next is a omnivorous. Omnivorous is there is the consume to both plant and animal as a source of their food. The human being, some of the omnivorous like the red fox is a feed on the various as a small rodent as well as on the dead animal. That is the herbivorous, is the carnivorous, and the scavenger. And the last is the parasite. Parasites is here. They live on the feed on the other living organism. Is called host. And the parasite not only feed on their host, but they are also causing their lethal and non-lethal disease in its. The B point is the position of the human beings in the food chain. The human beings are a consumer and many occupy. The primary and secondary and tertiary level, the vegetarians is the people are primary consumer. When they consume small fish, chickens, and goat meat, there are secondary consumers. And there is a consumer big fish, there are secondary consumer. Can explain why the big fish feed upon a small fish and other animal aquatic animals? That is the most important for you. दोस्तों हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है खाद्य चैन। देखिए फूड चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या होता है एक दूसरे के साथ जो है हर चीज़ जुड़ा हुआ होता है, एक के बिना एक अधूरा होता है। जैसे आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर अधूरा तब तक रहेगा जब तक आप लोगों की सहयोग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक जीव सर्वाइव कहीं नहीं कर सकता, चाहे वो जीवन की संघर्ष में हो चाहे वो पर्यावरण में हो, हर जगह जो है एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए त्रिपाण सेंटर जो है हमेशा यही बात आपको कहता है कि जब भी वो मौका मिले आपने जो है इसका लिंक व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो बच्चे आगे मेडिकल करना चाहते हैं लेकिन उनके इंग्लिश इतनी भयंकर होने के नाते उनको समझ नहीं आता है। कई टीचर तो ऐसे इंग्लिश बोल रहे होते हैं जो आधे वर्ड होते हैं और आधे वर्ड निकलते ही नहीं है, जो बच्चों को भी पल्ले नहीं पड़ता है। आप सोचते होंगे ये सब कैसे है पता मुझे। देखिए दोस्तों मैं भी एक विद्यार्थी रहा था और मुझे भी ये सब बातों का ज्ञान है। मैं हर एक फील्ड में जा चुका हूँ और देख चुका हूँ कि वहाँ पर क्या कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन जैसे मैंने सामना किया है वैसे आप लोग भी सामना कर रहे होंगे और बहुत से बातें आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। तभी तो त्रिपाण सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाता है और साथ में जो डिस्प्ले होती है आपको वो भी हिंदी इंग्लिश में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपके लिए समझ के लिए भी ज़रूरी है। कहते हैं जब बच्चे एडमिशन कराते हैं तो टीचर जो होते हैं उनको बहुत तरह के प्रताड़ना देते हैं कि आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप हिंदी मीडियम में थे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे
कि मैडम को कहने से, टीचर के कहने से आप जो अपने सपनों को अधूरा छोड़ के चले जाओ। कहते हैं ये त्रिपाण संरक्षक के साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो कभी ये बात नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपको जो है आगे अच्छा से अच्छा करना है, तो ये तब होगा जब आपके अंदर हौसला होगी। और हौसला कौन दे रहा है? त्रिपाण सेंटर दे रहा है, क्योंकि ये आपके ही लैंग्वेज में और आपके लिए ही समझ के साथ ये वीडियो सब बनाई जा रही है, जिसको समझना आपके लिए अति कठिन नहीं होगा। चाहे वो इंग्लिश में होगा चाहे हिंदी में होगा, दोनों ही लैंग्वेज बहुत ही साधारण है और बहुत ही सुचारू है, जिसको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने चैन बनाना है। ठीक है, जैसे फूड वेब बन जाता है, फूड चैन बन रहा है, वैसे ही आपको फूड चैन की तरह ही बनना है। अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ है कि वो वीडियो दूसरे तक पहुँचाने के लिए आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दें। अब उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के आगे इसको फॉरवर्ड कर दे। तो इससे क्या होता है, ये फूड चैन बनता है। देखिए दोस्तों, ये कोई देशद्रोह की बात नहीं है, ना कोई गलत बात है। ये तो सिर्फ है दूसरे बच्चे तक जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ये टॉपिक समझना है, उनके लिए है। कहते हैं कई बच्चे तो डर भी जाते हैं कि भाई फॉरवर्ड मैं क्यों करूं। देखिए दोस्तों, गलत बातें ये नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है। इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है जिससे आपको डरने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ गलत बातें होती है तो आप आंख बंद करके फटाक से वो कार्य कर जाते हो, लेकिन अच्छे बात करने के लिए आपको 75 बार सोचने की जरूरत पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय बदल गया है। आज कहते हैं सच के राह पे चलने वाले की बहुत ही कमी है, क्योंकि आज सच की बातें तो सब करते हैं, लेकिन चलने वाले कोई नहीं होते हैं। जब भी सच की बातें आती है, कड़वी समझ के वो लोग नहीं घोट पाते हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कभी भी होगा कोई सच्चाई किसी को बोल के देखना, आपको उसी समय वो जो है नकार देंगे और गलत आपको साबित कर देंगे 2 ही सेकंड में। कहते हैं सच जो है बहुत अच्छी है, लेकिन कहते हैं हमेशा ये कड़वी के रूप में लोगों को आज के समय में प्रेजेंट है। लेकिन कहते हैं पहले के समय में सत्यवादी लोग हुआ करते थे, सत्य के साथ चलते थे। लेकिन आज कहते हैं कि इतने लोग झूठ बोल रहे हैं और इतने गलत कर रहे हैं कि आज तो सच जो है मिटता ही जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है, कहते हैं सब मिट जाएगा, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता है। हाँ, बेशक सत्य कम जाता है लोगों के कारणों की वजह से, लेकिन एक दिन हमेशा सत्य की ही जीत होता है। तो आपने भी त्रिपाण सेंटर को जीत के रूप में आगे लेके चलना है, तो इसीलिए क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ गया है वो है खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चैन। देखिए फूड चैन जो है पादपों में आराम करते हुए क्रमश उच्चतर पोषण स्तरों में खाद्य का स्थानांतरण, जिसमें उच्च पोषण स्तर के प्राणी अपने नियंत्रण पोषण स्तर के प्राणी के भक्षण करते हैं। तो ये तो बात जर्नल सी है कि अगर पौधा है तो पौधे के दूसरे जीव जो खाने वाले होते हैं वो खाएंगे, तभी तो उनका जीवन यापन होगा। तो इसी को ही फूड चैन कहते हैं, जिसमें एक चीज़ को दूसरा चीज़ खा रहा होता है और वो चीज़ को दूसरा खा रहा था उसको वो खा रहा होता है। तो इसमें लास्ट में तो इंसान ही है, इंसान को खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इंसान जो है लास्ट कैटेगरी में इसमें आता है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए घास दिखाया गया है, टिड्डा दिखाया गया है, मेढक दिखाया गया और सांप दिखाया गया है, और जो है लास्ट में आपको बाज या गिद्ध दिखाया गया है। तो ये जो है एक तरह से फूड चैन बना रहा है। ठीक है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। कहते हैं अगर आप इसमें से किसी को भी हटा दोगे ना तो पूरा फूड चैन जो है बिगड़ जाएगा, और कहते हैं संसार भी खत्म हो जाएगा अगर इनमें से एक भी चीज़ को अगर डिस्टर्ब कर दिया। मान लीजिए अगर मैं घास को यहाँ से हटा देता हूँ, अगर घास को अगर आप हटा दोगे तो जितने भी जीव घास पे निर्भर हैं सारे के सारे मर जाएंगे और जो है पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने मेढक को ही हटा लिया तो मेढक को खाने वाले जितने भी जीव होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि फूड चैन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसमें हर एक जो है जीव का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जो है सोपान पोषण स्तर यानी ट्रॉपिकल लेवल कहलाता है, और उपभोक्ता उदाहरण में घास प्रथम और जो है बाज और प्रथम पोषण स्तर के प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, अगर चित्र में आप देखोगे तो यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला में जो दिया हुआ है घास का मैदान, देखिए घास के मैदान के रूप में यहाँ पर कैसे जीव जो है एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, पौधों पे चूहा निर्भर है और चूहा पे जो है सांप निर्भर है, सांप पे जो है अब जो है गिद्ध या ईगल निर्भर है। अगर तालाब में देखा जाए तो तालाब में आप अगर आप देखोगे तो पहले जो
पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको खाने वाले छोटे छोटे कीटे पतंग होते हैं, और उसके बाद मछलियाँ उनको खा जाते हैं, और मछलियों खाने वाले जो है बगुला सबसे ऊपर बैठा पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह जो है तालाब में जो इकोसिस्टम चलती है। पहला जो था घास के मैदान में चलता है, दूसरा जो है तालाब में चलता है, और तीसरा जो है वनों में चलता है, जहाँ पर पेड़ पौधे खाने वाले हिरन होते हैं और जो गाय भैंस सब खाने वाले होते हैं, और उनका खाने वाले जो होते हैं टाइगर होते हैं। तो इस तरह जो है वनों में जो है अपना फूड चेन चलता है। तो यहाँ पर जो है हर टाइप्स के फूड चेन आपके समझ दर्शाया गया है। अगर देखा जाए तो इन श्रृंखलाओं को आप 3 महत्वपूर्ण विषय को देख सकते हो। पहला तो निर्बल जीव पर शक्ति जीव पर आक्रमण करते हैं। ये तो जर्नल सी बात है कि जो निर्बल जीव होते हैं उसमें शक्तिशाली जीव जो है अटैक करके उनको मार के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर जो है प्राणियों की संख्या कम होती जाती है, जबकि आकार में वृद्धि होता रहता है। तो कहते हैं हर चीज़ जो है अपना सर्वाइव करना जानती है, और तभी वो जो है नेचर में बनी रहती है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में जो है समापनों की संख्या 4 से 5 तक सीमित रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके लेवल जो होते हैं मुश्किल से 4 या 5 तक ही जाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये तो जर्नल सी बात है कि 4 और 5 काफ़ी हद तक माने रखता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे कि आपने खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तर के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कौन कौन से पोषण स्तर है, तो उसको जो है विस्तार से हमें जानने का मौका मिला है। सबसे पहले आता है स्वयं पोषी यानी उत्पादक। ये बाड़ी तंत्र में सभी अन्य प्राणियों के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं। कहते हैं स्वयं पोषी प्रथम पोषण स्तर की प्रतिनिधि होते हैं, और ये मुख्यतः हरे पादप होते हैं जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को खाद्य पदार्थ यानी कार्बनिक अणु में रूपांतरित कर देते हैं। तो ये जो है खाद्य पदार्थ को रूपांतरित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे पुण्य प्रकाश संश्लेषण भी कहा जा सकता है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है विकिरण ऊर्जा के संग्रहण की कुल दर को जो है समग्र प्राथमिक उत्पादकता यानी इसको हम GPP कहते हैं, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है विकिरण ऊर्जा को संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है। तो उसकी कुल दर को जो है हम क्या कहते हैं जो है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका एक अंश पादपों द्वारा अपने उपचय रख रखाव के जनन में प्रयुक्त भी होती है, यानी ये एनर्जी को वो लोग क्या करते हैं रख रखाव यानी आने वाले समय में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न होती है, यानी जब सांस लेते हैं तो इससे जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और कहते हैं शेष भाग शुद्ध प्राथमिक उत्पाद यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी NPP के रूप में जो है संग्रहित किया जा सकता है, जो कि अगले पोषण स्तर पर जाता है। यानी NPP जो दोस्तों होता है वो अगले स्तर पे जाता है, लेकिन अगर GPP देखा जाए तो ये संग्रह होता है, यानी एनर्जी इकट्ठा करने का एक तरीका होता है जिसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो दूसरे स्तर में जाता है वो जाता है NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि समग्र प्राथमिक उत्पाद प्लस नेट प्राथमिक उत्पाद प्लस श्वसन। अगर हम सिंपल देखें तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसमें समग्र प्राथमिक उत्पाद माइनस श्वसन, इसका मतलब होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में देखो तो GPP इज इक्वल टू NPP प्लस R, लेकिन अगर आप GPP और माइनस R करोगे तो NPP हो जाता है। तो ये काफ़ी समझाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि GPP जो होती है वो ऊर्जा संग्रहालय होती है, यानी इकट्ठा होता है, लेकिन NPP जो होता है ऊर्जा जाने वाला होता है। लेकिन अगर हम जाने वाला होता है, अगर दोनों को हम क्रिया कराएं तो जाने वाला प्राप्त होती है। तो कहते हैं जब तंत्र में उपयोगिता सतर प्रक्रिया है, लेकिन अलग अलग पारितंत्र तंत्रों में ये अलग अलग होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखती है। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहली बात प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरी नंबर पे ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये जंतु अपना भोजन सीधे ही पादपों से लेते हैं। ये प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं, अंततः प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं, और ये द्वितीय पोषण स्तर के निर्माण करते हैं, जैसे टिड्डा इसका उदाहरण है। अन्य उदाहरण में कीट पक्षी कुत्रक व जुगली करने वाले जानवर शाकाहारी प्राणी, क्योंकि पादप में संग्रहित ऊर्जा को जंतु के उत्पादों में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अंततः इन्हें मूल्य उद्योग यानी की इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये उच्च सेलुलोज आहार को पचाने में काफ़ी सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधों में काफ़ी जो होता है सेलुलोज होता है, जिसको पचाने में काफ़ी सक्षम होते हैं।
उसके पश्चात है तीसरी बात आता है द्वितीय उपभोक्ता में, जिसमें मांसाहारी आते हैं। कहते हैं मांसाहारी वो प्राणी हैं जो दूसरे जंतु एवं उनके उत्कों का आहार करते हैं। अंत यह द्वितीय एवं तृतीय चतुर्थ स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मेढक द्वितीय स्तर का उपभोक्ता होता है क्योंकि वह टिड्डे का भक्षण करता है जो शाकाहारी है। इसमें सांप द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है क्योंकि वह दूसरे मांसाहारी मेढक का भक्षण करता है। और मेढक, सांप, कुत्ता, बिल्ली, बाघ सभी मांसाहारी हैं क्योंकि सामान्यतः मांसाहारी जीवों का आकार उच्चतम स्तर पर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जो है ये कंडीशन आगे बढ़ता जाता है। उसके पश्चात है पांचवा जो है अपघटक। देखिए अपघटक वो होते हैं जो खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। अपघटक वे जीव हैं जो समस्त पोषण स्तरों को मृत कार्बनिक पदार्थ जिसमें जो अपर एंडेमेट्रिक्स कहलाते हैं। यानी मान लीजिए अगर सारे उपभोक्ता हैं अगर मर भी जाते हैं तो ये जो होते हैं अपघटक उनको गला सड़ा देता है। यानी उन सारे को गलाने सड़ाने के लिए अपघटक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कहते हैं कि अगर भक्षण करते हैं और उनके पोषक तत्वों को अनुचक्रण में सहायता करते हैं, यानी दोबारा जो है ये पौधों दोबारा जो है खाद में उर्वरक के रूप में उसको परिवर्तन कर देते हैं जो दोबारा ही पौधों को प्राप्त हो जाता है। इनको दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सूक्ष्म अपघटक एवं वृत्तीय अपघटक। सूक्ष्म अपघटक जो है अत्यंत जीव छोटे होते हैं जिसमें जीवाणु, कवक और आदि जीव हो सकते हैं। और वृत्तीय जो है घटकों में उदाहरण हो सकता है इसमें टेगस, मैट्रस, मिलीपीडस, कुम्मी, फीता कुम्मी, कोयक्रे आदि घेंगे सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो याद रखना अपघटक दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म अपघटक और जो है वृत्तीय अपघटक। सूक्ष्म में जो होते हैं बहुत मैक्रो होते हैं जो दिखते नहीं है बट होते हैं, और वृत्तीय अपघटक में दिखते हैं और वो अपघटक करते हैं। अगर कुछ टर्म यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष कुछ टर्म आया है विशेष आश्रय समूह। देखिए सबसे पहले है अपमार्जक, यानी हम स्कैवेंजर कहते हैं इसको, अपमार्जक को। ये वे जीवित मृत पादप एवं जंतु को अपना आहार बनाते हैं। यानी आप याद रखना अपमार्जक का मतलब होता है कि जो मरे हुए जीव पर फीडिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं उसे हम अपमार्जक कहते हैं। ये जीव मृत पादप एवं जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। उदाहरण के लिए दीमक और विट्टल आदि सड़ती लकड़ियों के भोजन प्राप्त करते हैं, और इनमें अनेक जो है कशेरुकी जलीय जंतु भी शामिल होता है जैसे गिद्ध, समुद्री पक्षी और जो है लकड़बग्गा अपमार्जक जीवों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि ये मरे सड़े गले चीज़ों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। उसके पश्चात है सर्वभक्षी यानी सर्वहारी। देखिए सर्वभक्षी पादप एवं जंतु शत्रुओं को आहार के रूप में लेते हैं। उदाहरण मानव। कुछ सर्वभक्षी जीव जैसे रेड फ्रॉक्स, लाल लोमड़ी, ठीक है, सरस, फलों, कृतकों और मृत जीवों से आहार प्राप्त करते हैं। अंततः यह शाकाहारी, मांसाहारी और अपमार्जक भी होते हैं। यानी ये जो है सर्वभक्षी होते हैं, यानी सभी चीज़ों को जो है भक्षण कर सकते हैं। उसके बाद परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे के शरीर पर रह के अपना जीवन यापन करता हो, यानी परजीवी कहलाता है। ये जीवित प्राणी पर निर्भर करते हैं और उनके भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी परपोषी न केवल जीवित प्राणियों पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें घातक एवं अघातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर बालों में अगर जू होता है तो वो भी आपके लिए परजीवी हो जाता है। पेट में अगर बॉम्ब्स कीड़े हैं तो वो भी परजीवी होते हैं जो कि आपके अंदर रह के आपके ही ब्लड को चूसते हैं और आपको कई प्रकार की बीमारी को भी देते हैं। और अंतिम बात यही रहता है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान। देखिए खाद्य श्रृंखला में अगर मनुष्य का स्थान देखा जाए तो मनुष्य जो उपभोक्ता और प्रथम, द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता क्रम में अव्यवस्थित हो सकता है। शाकाहारी मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है जब वह छोटी मछली या जो मुर्गी के चूजे या बकरी का मांस आदि अपने भोजन में लेता है तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और जब मनुष्य बड़ी मछली का भक्षण करते हैं तो उन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। क्या आप इस बात का व्याख्या भी जान सकते हो कि बड़ी मछली, छोटी मछली, अन्य मछली, छोटी जलीय जंतु को अपना आहार क्यों बनाती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कौन करता है। तो यही बात याद रखना कि मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में तीनों कैटेगरी को जो है ये फॉलो करता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हमारा फूड वेब, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप तिरपान सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना मत भूलिएगा।